Welcome, dear students. This is our fourth lecture on the quantum free electron theory. और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे about the heat capacity of electrons. यानी अगर हम एक सॉलिड को या एक मेटल को हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को कितनी एनर्जी मिलेगी और then we will differentiate that energy with respect to temperature. तो हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट के लिए एक्सप्रेशन मिलेगी. तो already we have derived expression for lattice specific heat in Debye theory. तो फिर हम लैटिस स्पेसिफिक हीट और इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट को सम करेंगे. तो जब हम दोनों कंट्रीब्यूशन उसको ऐड करेंगे तो वी विल गेट द टोटल स्पेसिफिक हीट फॉर अ सॉलिड. सो लेट अस स्टार्ट. We will start with Drude-Lorentz classical free electron theory. According to this theory, चूंकि इसमें classical concepts use होते हैं, तो एक electron behaves as a free particle, so it has got 3 degrees of freedom, and to every degree of freedom, the energy associated according to the equipartition theorem is 1/2 kT. So this is the energy associated with one electron. और चूंकि अगर हम 1 mole of electron देखें, so energy of 1 mole of electrons, so we will multiply here the Avogadro's number, so we will get the energy of 1 mole of electrons. तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो we will differentiate this energy with respect to temperature. तो we will get 3/2 Na into Kb. तो we will get rid of this temperature. तो जब हम एनर्जी को डिफरेंशिएट करेंगे तो this will give us the specific heat, and this will be the electronic specific heat, and this will be equal to 3/2, and this product Boltzmann constant into Avogadro's number gives the universal gas constant. तो जब हम इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो we get 12.5 joule per mole per Kelvin. So this is the theoretical value of electronic specific heat. This is the theoretical value. लेकिन जब experimentally हम electrons की specific heat measure करते हैं, we get only some 0.1 joule per mole per Kelvin. So that means this is the experimental value. So that means the experimental value is not even the 1% of the theoretically estimated value. So there is a big gap between theoretical value and experimentally determined value. So the Drude-Lorentz classical free electron theory fails to explain the electronic specific heat. So this was not explained by classical free electron theory. So let us see कि quantum free electron theory electronic specific heat को कैसे theoretically explain करती है. This is the energy level diagram, and हर एक energy level में दो electrons हैं, one for spin up, another for spin down. तो हर energy level में दो electrons accommodate होते हैं, and we see that at T is equal to 0 Kelvin, यानी absolute 0, the top most filled energy level, तो उसको हम फर्मी लेवल कहते हैं, और उसकी जो एनर्जी है उसको हम फर्मी एनर्जी कहते हैं. सो दिस मच इज द फर्मी एनर्जी. सो दिस इज द टॉप मोस्ट फील्ड लेवल. तो इसके ऊपर जो भी एनर्जी लेवल्स हैं दे आर ऑल एम्प्टी, और इसके नीचे जितनी भी एनर्जी लेवल्स हैं दे आर ऑल फिल्ड. तो उसके बाद हम इस सॉलिड को हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं. तो जब हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं
our supplied heat energy, our supplied energy is of the order of kT, Boltzmann constant into temperature. So this is the energy जो हम supply करते हैं when we heat up a solid up to a temperature T. T is the temperature जहां तक हम इस solid को heat up करते हैं. So we are giving only this much energy kT. So उससे क्या होता है कि जब हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, only those number of electrons get excited which are up to a depth of kT below this Fermi level. So हमारी हीट एनर्जी सप्लाई करने से ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये एक्साइट नहीं होते हैं, सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं विच लाई अप टू ए डेप्थ ऑफ kT बिलो द फर्मी लेवल. सो दैट मीन्स सिर्फ इतने इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं and only those electrons contribute to electronic specific heat, which is obviously less than the total number. Classical free electron theory में assume किया जाता है कि सारे के सारे free electrons contribute करते हैं to electronic specific heat. But according to quantum free electron theory, only a fraction of free electrons contribute to electronic specific heat. और वो fraction हमें कैसे मिलेगा? We have to see कि फर्मी लेवल से नीचे up to a depth of kT कितने electrons accommodate हुए हैं. So the fraction will be number of thermally excited free electrons which are because of the energy kT, or divide the total number of free electrons. The total number of free electrons are accommodated in this whole energy spectrum, that is EF. So that means the fraction of electrons will be given by the ratio kT by EF, because the number of thermally excited free electrons, they are directly proportional to kT, and the total number of free electrons, they are directly proportional to the total energy up to which all those electrons are filled. So the fraction of these electrons is given by the ratio kT by EF. Let us see कि at room temperature हमें ये fraction किसके बराबर मिलेगी. We will substitute temperature which is about room temperature, so that means 300 Kelvin. इसी तरह हम इसमें Boltzmann constant का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. Typical value of Fermi energy for a metal is about 5 electron volt. तो हम ये इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो we will see what is the fraction, and that fraction is about 0.6%. इसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 1%. So that means जब हम एक सॉलिड को हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, only 1 out of 100 free electrons get excited. Only 1% of the total electrons get excited, and only that fraction, only 1% of the total free electrons contributes to the electron specific heat. इसीलिए जो theoretical prediction हमें मिली थी, एक्सपेरिमेंटली हमें उसका सिर्फ 1% वैल्यू मिलता है. So this is how quantum free electron theory explains the electron specific heat. Now let us derive expression for specific heat of electrons. So this will be the energy of electrons at absolute zero. Then we heat up the solid so that we take temperature up to T Kelvin.
तो हम देखते हैं व्हेन द टेम्परेचर इज टी, उस वक्त एनर्जी क्या है, तो देन वी सी कि एनर्जी में इंक्रीज कितनी हुई व्हेन वी इंक्रीज्ड a system of n free electrons from 0 Kelvin to T kelvins। तो हम इनके लिए एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं। when the temperature is 0 Kelvin, तो उस वक्त मैक्सिमम एनर्जी फर्मी एनर्जी होगी। सो दैट्स वाई हम इस U नॉट के लिए एक्सप्रेशन लिख रहे हैं E इज द एनर्जी ऑफ ऑल एनी इलेक्ट्रॉन, GeDE दिस इज द नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स जिसमें ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एंड F ऑफ E इज द प्रोबेबिलिटी के ये जो एनर्जी स्टेट्स हैं इनमें सच में कोई इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता भी है या नहीं। When the temperature is T, तो we will take the upper limit of energy up to infinity, because अब एनर्जी जो है वो फर्मी एनर्जी नहीं है। ऑब्वियसली इन्फिनिटी इज नॉट द रियल वैल्यू। अगर 0 केल्विन पे एनर्जी फर्मी एनर्जी है, तो एट टेम्परेचर T द एनर्जी विल हैव सम वैल्यू हियर। लेकिन अगर हम इसको इन्फिनिटी तक भी ले जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज E से लेके ऊपर तक जो सारी की सारी एनर्जी लेवल्स हैं दे विल बी ऑल एम्प्टी, सो दे विल नॉट कंट्रीब्यूट। सो अगर हम एनर्जी एक्चुअली यहाँ पे हमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लेना चाहिए था 0 टू सम एनर्जी E विच इज द मैक्सिमम एनर्जी एट टेम्परेचर T, लेकिन हम 0 से लेके बिल्कुल इन्फिनिटी तक भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज E मैक्स से ऊपर की जो एनर्जी लेवल्स होंगी वो एम्प्टी होंगी, तो दे विल नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग, तो हमारे इंटीग्रल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो द फर्स्ट टर्म गिव्स एनर्जी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, चाहे वो ग्राउंड स्टेट में हो या एक्साइटेड स्टेट में हो, और जो ये दूसरी टर्म है इट गिव्स एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विच आर अप टू फर्मी एनर्जी लेवल। अच्छा, ये जो दूसरी टर्म है इसमें F ऑफ E शुड बी 1, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट जीरो। तो एब्सोल्यूट जीरो पे फर्मी लेवल तक सारे की सारी एनर्जी स्टेट्स फिल्ड होती हैं। सो दिस इक्वेशन विल take this form, so we will call it equation number 1। तो इसको अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो we will get expression for specific heat। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, this term is a constant, it does not change, this is the total energy of all the free electrons at absolute zero and it is fixed for a given solid। तो ये constant है, इसकी डिफरेंशिएशन 0 बनेगी, तो डिफरेंशिएशन सिर्फ फर्स्ट टर्म में होगी, तो वी आर गेटिंग अ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्शियल F ऑफ E बाय पार्शियल T, बिकॉज चेंज इसी में होगी, because F of E gives the probability whether an energy state is occupied by an electron or not। और जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो ओरिजिनली फर्मी लेवल तक एनर्जी स्टेट्स फिल्ड थी उनमें से कुछ एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे एंड दे विल गो अप टू हायर एनर्जी लेवल्स, तो कॉन्सिक्वेंटली नीचे बहुत सारी एनर्जी लेवल्स वैकेंट हो जाएंगी। सो changing temperature will change the probability of finding an electron in a given energy state। तो इसीलिए हम इसी को डिफरेंशिएट करेंगे। Actually this will give us the electronic specific heat, लेकिन इसको हम एक टर्म सबट्रैक्ट करेंगे, we will subtract a term which will be 0। तो 0 सबट्रैक्ट करने से हमारी इक्वेशन नंबर 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो टर्म जो है जिसका वैल्यू 0 है वो सबट्रैक्ट करने से इस इंटीग्रल को सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो जाएगा, अदरवाइज कोई और फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। वी विल टेक ए टर्म जिसका वैल्यू 0 होगा और वो हम इस इक्वेशन नंबर 2 को सबट्रैक्ट करेंगे, जस्ट टू मेक आवर मैथमेटिक्स इजी।
हमारे पास फर्मी एनर्जी है विच इज फिक्स्ड फॉर मेटल और अ सॉलिड. इसको हम टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई करेंगे. दिस होल थिंग इज अ कांस्टेंट. तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 आती है. तो हमने फर्मी एनर्जी को मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. दिस जी ऑफ ई डी ई, दिस इज द नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स. और जब इसको हम प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव अस द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे एंड ऑब्वियसली इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा. बिकॉज आप टेम्परेचर कितना भी इंक्रीज करेंगे, एक मेटल के अंदर जितने टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट विल रिमेन कांस्टेंट. फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट से एक्साइट होके हायर एनर्जी स्टेट्स में जाते हैं. बाकी मेटल को छोड़कर तो नहीं जाते हैं. द टोटल नंबर रिमेन्स कांस्टेंट. फर्मी एनर्जी इज फिक्स्ड फॉर अ गिवन मेटल और सॉलिड. सो दिस टर्म इज अ कांस्टेंट. तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म शुड बी 0. सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3. इट्स वैल्यू इज 0. सो अगर हम ये इक्वेशन नंबर 3 किसी भी इक्वेशन को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो वी विल सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2. सो दिस वाज आवर इक्वेशन नंबर 2. तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो आप देख सकते हैं कि इसमें ई जी ऑफ ई डी ई और सॉरी इसमें g of e, de and partial f of e by partial t ये सारा कॉमन आउट है. तो पहली टर्म में e बचेगा, then there is a minus and then there is ef, the Fermi energy. So we will get e minus ef. So that will be our next step. So this is what we have to integrate. This is the expression for electronic specific heat. This is the expression. तो अगर हम ये partial f of e by partial t देखेंगे, it has appreciable value. It has got appreciable value only when e is around Fermi energy. The differentiation of Fermi function with respect to temperature, as you can see, is in general negligible and 0, and it attains a good value, appreciable value, only in the vicinity of this Fermi function. So that means ये जो differential coefficient है partial f of e by partial t, it has appreciable value only near Fermi energy. So यहाँ पे हम e की जगह EFB लिख सकते हैं, and g of EF will be a constant, और इसको हम outside integration B ले जा सकते हैं. So what I mean to say कि at room temperature अगर हम kT का वैल्यू देखें, this is very very small as compared to Fermi energy. तो the ratio kT by EF is very very small as compared to unity. तो consequently अगर हम energies के बाकी values देखें जो हम टेम्परेचर इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन को देते हैं, they are not much significant as compared to Fermi energy. So that means कि this differential coefficient has appreciable value only at E approximately equal to EF. तो इस इक्वेशन में हम यहाँ पे E की जगह EF सब्स्टिट्यूट करेंगे, and that will be a constant and that can go outside integration. So we will get equation number 4. Next, we will evaluate this. We will differentiate Fermi function with respect to temperature. फिर उसको हम substitute करेंगे into equation number 4. So let us differentiate. So we will write partial f of e
बाई पार्शियल टी इज इक्वल टू, तो इसको डिफरेंशिएट करना है, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसको हम ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में, तो इसका पावर -1 बन जाएगा। सो इट इज e रेज टू पावर e माइनस ई एफ बाई के टी प्लस 1। इस सारी फंक्शन का वैल्यू -1 बनेगा। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका जो ये पावर है नीचे प्रोडक्ट में आ जाएगा। सो इट इज -1 इनटू जो ये सारी की सारी फंक्शन है, इसका पावर एक और कम हो जाएगा। सो इट विल बिकम -2। सो इट विल बिकम e रेज टू पावर e माइनस ई एफ डिवाइडेड बाई के टी प्लस 1। तो इसका जो पावर है वो -2 बनेगा इनटू, अब जो अंदर इस ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है इसकी डिफरेंशिएशन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन वापस आएगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो e माइनस ई एफ बाई के टी प्लस 1 की डिफरेंशिएशन आएगी 0, राइट, इनटू अब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये पावर है दिस, अब इसकी डिफरेंशिएशन, तो इसमें हम देखते हैं कि e माइनस ई एफ बाई बोल्ट्जमैन तो कांस्टेंट है, डिवीजन में टेम्परेचर है, तो उसको हम यहां पे लिखेंगे। तो वी विल राइट पार्शियल बाय पार्शियल टी ऑफ, चूंकि डिवीजन में टेम्परेचर है उसको हम ऊपर ले जाएंगे तो टी का पावर -1 बनेगा। तो इसकी डिफरेंशिएशन, तो यहां तक तो ये सारा सेम ही आएगा। तो इनटू टेम्परेचर की डिफरेंशिएशन, इसका एक पावर जो है -1 वो प्रोडक्ट में आ जाएगा और इसका एक पावर कम हो जाएगा। सो इट विल बिकम टी रेज टू पावर -2। तो यहाँ पे हम देखते हैं दिस -1 एंड दिस -1 विल कैंसिल, तो सारा पॉजिटिव बनेगा। तो हमें क्या मिल सकता है, पहले हम इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे। वी विल राइट फर्स्ट दिस टर्म, सो वी विल राइट e रेज टू पावर e माइनस ई एफ बाई के टी, डिवीजन में सिंस इस टर्म का पावर -2 है इसको नीचे ले जाएंगे तो इसका पावर +2 हो जाएगा। सो वी विल गेट e माइनस ई एफ बाई के टी प्लस 1 और इसका पावर आएगा +2। सो वी आर डन विद दिस ऑल्सो। उसके बाद यहाँ पे हमें मिलता है e माइनस ई एफ, सो दिस इज e माइनस ई एफ, और डिवीजन में है एक तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है टी रेज्ड पावर -2, इसको भी नीचे ले जाएंगे तो इट विल बिकम टी रेज्ड टू पावर 2। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फर्मी फंक्शन। सो ये यहाँ पे है, दिस इज व्हाट वी गेट आफ्टर डिफरेंशिएटिंग द फर्मी फंक्शन। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 4 में यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर 4 इज दिस, तो यहाँ पे पार्शियल एफ ऑफ ई बाय पार्शियल टी की जगह ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दिस इज हाउ वी सब्स्टिट्यूट पार्शियल एफ ऑफ ई बाय पार्शियल टी हियर। इसको सॉल्व करने के लिए आई विल मल्टीप्लाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो उसको मैं डिवाइड भी करूंगा तो डिवीजन में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे e माइनस ई एफ है, यहाँ पर एक और e माइनस ई एफ है, तो दैट मीन्स कि इसका भी स्क्वायर मिलेगा। सो e माइनस ई एफ का भी स्क्वायर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का भी स्क्वायर, टेम्परेचर का भी स्क्वायर, तो इस सारी टर्म का स्क्वायर मिलेगा and this Boltzmann constant will get out of the integral. So that will be our next step. So Boltzmann constant हमें एक outside integral मिलेगा और e minus ef और division में kt
इस सब का स्क्वायर मिलेगा। नाउ वी हैव टू सॉल्व इक्वेशन नंबर 5। तो उसके लिए ये जो ब्रैकेटेड टर्म है, आई विल पुट दिस इक्वल टू x। इसको हमें सॉल्व करना है। वी हैव टू सॉल्व दिस इंटीग्रल इक्वेशन नंबर 5 एंड यू कैन सी इट इज अ वेरी कम्बरसम लुकिंग इंटीग्रल। तो इसको सिंपलीफाई और सॉल्व करने के लिए वी विल चेंज द वेरिएबल। तो we will put this whole thing e minus ef by kt equal to x. So when we will put this e minus ef by kt equal to x, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें मिलेगा de माइनस फर्मी फंक्शन का डिफरेंशियल 0 होगा बिकॉज दैट इज अ कांस्टेंट, देन डिवाइडेड बाय kt is equal to differential of x. सो -0 डिफरेंस करने से फर्क नहीं पड़ता, सो यू विल गेट दिस। तो यहां से हमें डी के लिए एक्सप्रेशन मिलेगी, इट विल बी इक्वल टू के बी टी इंटू डी एक्स। सो व्हेन वी विल सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू दिस फंक्शन, चूंकि इंटीग्रल में डी है तो डी की जगह हम ये लिखेंगे। सो वी गेट expression for dE as kt into dx. So we got this. Also, we have to see what are the limits of integration. So when we will put E equal to infinity, पहले हम अपर लिमिट देखेंगे। तो जब हम e को पुट करेंगे इन्फिनिटी, एट दैट टाइम x विल आल्सो टेंड टू इन्फिनिटी, सो वी गेट द अपर लिमिट। व्हाट अबाउट द लोअर लिमिट? लोअर लिमिट इज वी हैव टू पुट x e is equal to 0. So when we will put e is equal to 0, we will get x is equal to minus ef by kt. लेकिन आपको पता है कि इफ वी विल गो x अप टू माइनस इन्फिनिटी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज इंटीग्रल में जो एक्चुअल फंक्शन हमने यूज की थी, पार्शियल एफ ऑफ ई बाय पार्शियल टी, दिस हैज appreciable value, non-zero value only when E has value around Fermi energy. तो अगर हम x का वैल्यू कितना भी माइनस इन्फिनिटी तक ले जाएं, उससे हमारी इंटीग्रेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्चुअली हमें x का लोअर लिमिट ये मिलता है। we get lower limit for x equal to minus ef by kt and we get its upper limit infinity. This is upper limit for x as infinity. लेकिन अगर हम इस लोअर लिमिट से माइनस इन्फिनिटी तक भी जाएं तो हमारे इंटीग्रल पे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज इंटीग्रल के अंदर जो ये फंक्शन है, दिस फंक्शन इट हैज एप्रिशिएबल वैल्यू ओनली व्हेन e इज अराउंड द फर्मी एनर्जी। तो अगर हम फर्मी एनर्जी के काफी नीचे चले जाएं, दैट विल नॉट चेंज आवर इंटीग्रल। सो वी विल कीप द लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी। ये हम इसलिए करेंगे क्योंकि इससे हमारा जो इंटीग्रेशन है उसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। वी विल गेट ए स्टैंडर्ड इंटीग्रल। ओके, सो लेट अस सब्स्टिट्यूट ऑल दोज इनटू दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 5। तो जब हम इसमें ये सारी सब्स्टिट्यूशंस करेंगे, दिस विल बी सिंपली x, this will be also x, this will be also x, dE it will be kbt into dx, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हमें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी मिल जाएंगे। तो यहां पर जो ये kbt है, ये आउटसाइड इंटीग्रेशन चला जाएगा, तो हमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यहाँ पे स्क्वायर मिलेगा। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 6 जो हमें मिलती है, एंड दिस इज आवर स्टैंडर्ड इंटीग्रल एंड इट हैज गॉट वैल्यू
सिंपल पाई स्क्वायर बाई 3। तो ये जो इंटीग्रल है, इस सारे इंटीग्रल की जगह हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे पाई स्क्वायर बाई 3। So we get expression for electronic specific heat as G of EF K square T into pi square by 3. Now we have to evaluate the value of density of states at energy equal to Fermi energy, and let us do that. So फिलहाल we get expression for electronic specific heat as 1 by 3 pi square G of EF K square T. So let us now evaluate the value for the density of states at Fermi function. We have got relation between the total number of free electrons with Fermi energy this much. Let us take natural log on both sides. So we will get this expression. Let us keep this whole thing equal to x and Fermi energy with power 3 by 2 as y. We know that log of x into y, we can write it as log of x plus log of y. Obviously, it is a natural log. I am calling it log. तो हम इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं. तो we will get this thing. Log of this constant quantity. Now this will be whole thing a constant plus log की प्रॉपर्टी ये है कि log के अंदर जो है अगर उसका कोई पावर है तो वो प्रोडक्ट में आ जाता है. So we will get 3 by 2 into log of EF. Left hand side में we have got log of n. So this is what we will get in the next step. तो इसको अब हम डिफरेंशिएट करेंगे. तो log की डिफरेंशिएशन आएगी 1 by n into dn is equal to constant की डिफरेंशिएशन 0 plus 3 by 2 again log की डिफरेंशिएशन it will be 1 by EF into its differential DEF. So this is what we will get. dn by n is equal to 3 by 2 def by ef. तो यहां से हम डेंसिटी ऑफ स्टेट के लिए अगर एक्सप्रेशन निकालना चाहें, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एट फर्मी फंक्शन, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इज नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स डिवाइडेड बाय द एनर्जी इंटरवल, दैट इज DEF. तो हम यहां से इसके लिए एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं. एक तो हमें 3 by 2 मिलेगा एंड n divided by EF. That is what we will get. So this gives me the expression for the density of states. This is what we will get, the expression for density of states. We will use this equation number 9 into equation number 7. So this is what we will get. What we have got expression for the density of states. This is our equation number 7. तो यहाँ पर जो ये डेंसिटी ऑफ स्टेटस है एट फर्मी वैल्यू, फर्मी एनर्जी, उसकी जगह हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो अपॉन सब्स्टिट्यूशन वी गेट दिस एक्सप्रेशन. अच्छा, यहाँ पे जो ये EF है, दिस इज फर्मी एनर्जी. इसको अगर हम इन टर्म्स ऑफ फर्मी टेम्परेचर लिखना चाहें तो वी कैन राइट इट एज KB into TF. Because we define Fermi energy equal to Boltzmann constant into Fermi temperature, and this Fermi temperature depends upon the nature of the solid. ये solid कौन सा है. तो जब हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे तो EF उसकी जगह हम लिखेंगे KBTF. तो एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो पावर है वो ऊपर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा. So this is the final form for electronic specific heat, and you can obviously see that electronic specific heat is directly proportional to temperature at all temperatures.
This is the form for heat capacity for electrons. तो अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट देखना चाहें, that is for 1 mole of electrons, तो we will write 1/2 pi square. Simply यहाँ पे n की जगह Na लिखना है. The rest will remain same. So this is electronic specific heat. And obviously the electronic specific heat is directly proportional to temperature. Okay, now let us see what is the total specific heat of a solid. It will have two contributions, one from the lattice and another from the electrons. तो lattice के लिए हम d by theory use करेंगे. So this is d by theory, and this is just what we have got. तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, a into t cube, where we have put this whole factor equal to a. इसमें d by temperature आता है, so that means a depends on the nature of the solid. इसी तरह यहाँ पे हमने ये सारा का सारा जो है we have put it equal to b, and चूंकि इसमें Fermi temperature आता है, तो b also depends on nature of the solid. So a and b are those values. अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें, तो lattice specific heat is directly proportional to cube of temperature. So we will get this green curve for it. And electronic specific heat is directly proportional to temperature. So we will get a straight line. So you can see at low temperatures, the electronic specific heat dominates. Its value is large. But as we increase temperature and we approach ordinary temperatures like here, तो इसके corresponding अगर हम देखें, तो we see कि lattice specific heat dominates at high temperatures, and electronic specific heat dominates at low temperatures. At low temperatures, you can see the red straight line is above the green curve. So that means electronic specific heat dominates at low temperatures. And at ordinary temperatures, high temperatures, we see the green curve is above the red straight line. So that means at high temperatures, ordinary temperatures, room temperatures, it is the lattice specific heat that dominates. So we have got this equation. अगर हम इसको divide करें on both sides by temperature, तो हमें left hand side पे specific heat by temperature मिलेगा AT square plus B. तो अगर हम इस सब को along y axis plot करें, specific heat per unit temperature, और टेम्परेचर का स्क्वायर इसको हम along x axis प्लॉट करें, and we can say this b equals c and this a equals m. तो we get an equation of a straight line y is equal to mx plus c. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम along x axis टेम्परेचर का स्क्वायर प्लॉट करें, along y axis हम specific heat per unit temperature plot करें, तो we will get a straight line जिसका slope होगा equal to a. The slope will be equal to a and its y intercept will be equal to b. So this is another graph of interest. So if we plot a graph between specific heat per unit temperature and square of temperature, we get a straight line with a equal to slope and b equal to its intercept. So this completes our